A very good morning and welcome back. Last time we were discussing about black body radiation and the black body radiation curve with respect to frequency which we actually studied looked something like this. So you had frequency on x-axis and spectral radiance, we can say the energy density per unit volume represented by u nu d nu on y-axis, and we got the curve something like this. It was going to a maximum and then reducing depending on temperature. Fine. So let's say if this was temperature T1, so we got a maxima at some frequency, let me call that as nu1. Fine. Then what we had was, if we decrease the temperature to let's say some T2, then this maxima will displace and it will come inside. So this is our nu2 at some temperature T2. But remember that this particular diagram is with respect to frequency. Okay, and frequency is directly related to, I should say, directly related to in an inverse fashion with wavelength. So using C is equals to nu into lambda, you can simply write nu can be written as C upon lambda. So instead of plotting this particular graph with respect to frequency, you can also plot such a graph with respect to wavelength. तो राइट नाउ इट इज बीइंग प्लॉटेड एज व्हाट, अभी हमने इसे जो प्लॉट किया है दैट इज सी अपॉन लैम्डा के फॉर्म में. अब हम इसे लैम्डा के फॉर्म में प्लॉट करना चाहते हैं. आई वांट लैम्डा टू बी ऑन माय एक्स एक्सिस. देन अ मैजिक विल हैपन. I will keep that as a mystery for some time, but a magic is going to happen. You are going to get to know about something. And here, u nu d nu is still there. Fine. Now, if you will draw these graphs, what you will get will be something like this. At low temperatures, your maxima will be towards higher wavelength. Higher wavelength means low temperature पे low frequency आ रही थी, लेकिन frequency is inversely proportional to wavelength. So at low temperature, you will get higher wavelength. So let me just draw it. Let's say for temperature T1, you will get a maxima over here like this. At some temperature T1. Then at another temperature T2, which is greater than T1, you will get a maxima like this. So the maxima is now shifted. And yet another temperature, let's say T3. So this is your T1. That was, the brown one was T2. And now we are coming to T3. Let's say the T3 is going like this. So this is the maxima for T3. Okay. So here the condition is that T1 is smaller than T2 is smaller than T3. ऊपर ऐसा नहीं था, ऊपर था T2 was large, T1 was smaller. But the maximum was shifting towards left. Why? Because यहाँ frequency represented है, यहाँ wavelength represented है, inverse proportion की वजह से. यहाँ से एक चीज समझ आई, that depending on this maximum wavelength, depending on this maximum wavelength, की maximum wavelength कहाँ आती है, हम किसी भी चीज का रंग देखकर उस चीज का टेम्परेचर पता कर सकते हैं. जैसे एक रेड स्टार है, रेड स्टार यानी आपको एक विजिबल रीजन में पीक मिलेगी रेड पर, रेड फ्रीक्वेंसी पर, विच इज नियरली 700 नैनोमीटर्स. इसका मतलब है कि टेम्परेचर करीब करीब 4000 केल्विन के बराबर होगा. ओके, दैट्स अ मैजिक. जस्ट लुक एट द स्टार, कलर देखो, पता चल जाएगा क्या टेम्परेचर हो सकता है. अगर येलो सा स्टार दिख रहा है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर 6000 केल्विन के करीब करीब होगा. और अगर ब्लू स्टार दिख रहा है, जो कि वैसे देखने में ज्यादा बेहतर लगता है, ब्लू स्टार है बट इट इज रियली रियली हॉट, करीब करीब 18000 केल्विन तक उसका टेम्परेचर हो सकता है. सो दैट्स द मैजिक. अगर आपने इसे वेवलेंथ के फॉर्म में प्लॉट कर लिया तो डिपेंडिंग ऑन कि किस विजिबल वेवलेंथ पर मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंस हमें दिखाई दे रहा है, आप पता कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना होगा, बिकॉज दैट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. इसी चीज का यूज करके
what we could find is this. कहाँ गया? Yeah. हमारे सन का टेम्परेचर जो कि करीब करीब लाइक इट इज स्कीमेटिक इज 5500 डिग्री सेंटीग्रेड्स, और फिर अलग अलग दूसरे स्टार जो हेवनली बॉडीज के जो हम देख पाते हैं उनके अलग अलग टेम्परेचर बेस्ड ऑन दियर कलर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. सो ये पूरी लिस्ट इंटरनेट से मैंने कॉपी की, यू कैन सी ओवर हियर. सो ये ब्लू दिख रहा है, इसका टेम्परेचर नियरली 27,730 सेंटीग्रेड है, इसका नाम है एक्रस. और हमारे सन का टेम्परेचर 5500 ही है. ठीक है, और सरफेस टेम्परेचर की बात हो रही है. तो एक चीज आपने नहीं सीखी आज कि डिपेंडिंग ऑन दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व हम बता सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि देखने में इस रंग का अगर सितारा या तारा है तो उसकी जो टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर है, वो क्या होगा. ठीक, ये हुई हमारा पहला डिस्कशन. दूसरा ये है कि लास्ट सेमेस्टर हमने दो स्पेशल यही थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड लॉज पढ़े थे, शायद आपको याद हो. एक था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और दूसरा था स्टीफेंस लॉ. इन दोनों को भी आप रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से. हमारी पूरी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पर ही, आप देख सकते हैं. ठीक है, और आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो you have to also revise Wien's displacement law and Stephen's law. ठीक है, so now we will move on. I am considering that ये जो रेडिएशन वाला पार्ट है वो हमने कर लिया है. इसके अलावा पिछली क्लास में हमने एक और चीज भी डिस्कस की थी, दैट वाज द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट. ओके, और वहीं से तो ये पता चला कि ये जो लाइट है वो एक तरीके की स्पेशल क्लास ऑफ वेव है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल रहे हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वेव नेचर of light was confirmed by Hertz experiment. Okay, और एक्सपेरिमेंट का स्कीमेटिक अगर आपको बताएं तो दैट वाज प्रीटी सिंपल. एक सोर्स थी, एसी सोर्स. मैंने वो सारे कॉइल वगैरह वो रेजिस्टेंसेस एक में डाल दिए, तो आई एम कॉलिंग दिस एज माय सोर्स ओनली, एसी सोर्स. और इस एसी सोर्स के बाद में हमने यहाँ पे दो मेटालिक बॉल्स लगाई थी. जब जब इस एसी सिग्नल का मैक्सिमा आता था तब तक यहाँ पे इन दो मेटल बॉल्स के बीच में एक स्पार्क उत्पन्न होता था. लेकिन ये हर्ट्ज का कंक्लूजन नहीं था. उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो ये कि अगर कुछ दूरी पर एक लूप रखा है जिसमें दो मेटल बॉल अलग से रखी हुई हैं, तो इन मेटल बॉल में भी स्पार्क उत्पन्न होता है तब तब जब जब यहाँ मैक्सिमा आ रहा है. तो एक वायरलेस कम्युनिकेशन जैसा बन गया है. ठीक है, वायरलेस, टोटल वायरलेस. और यहीं से पता चला कि हाँ, यही तो वो चीज है जिसकी खोज मैक्सवेल ने की थी कि एक वेलोसिटी ऐसी जो इन दोनों चीजों के स्क्वायर रूट के प्रोडक्ट के इनवर्स के बराबर होगी. दैट इज व्हाट स्पीड ऑफ लाइट. दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. जब हर्ट्ज के 1888 के एक्सपेरिमेंट में ये कंफर्म हुआ कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसी एक्सपेरिमेंट से एक कंफ्यूजन भी उत्पन्न हुआ कि केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है प्रकाश, और भी कुछ है. हुआ ये कि इसी एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक यूवी लाइट की सोर्स अगर एक बॉल पर पड़ी, यूवी लाइट की सोर्स, तो अगर अल्ट्रावायलेट लाइट इस मेटालिक बॉल पर पड़ी तो ज्यादा तेज स्पार्क उत्पन्न हो रहा था यहाँ पे. लेकिन हर्ट्ज को ये चीज समझ नहीं आई तो उसने इग्नोर कर दी. ही जस्ट इग्नोर्ड दैट. यूवी लाइट अगर इन मेटल बॉल्स पे पड़ती है तो एक्स्ट्रा स्पार्क जनरेट कर रही थी. लेकिन हर्ट्ज ने कहा कि मुझे इसका कंफ्यूजन है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, तो उसको रिपोर्ट नहीं किया. ऑल्दो ही ऑब्जर्व्ड इट, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया. देन 4-5 साल बाद लोगों ने इस चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया और इवेंचुअली 1905 में
आइंस्टीन ने इसकी एक थ्योरी भी दी विच डिफाइड द नोशन कि लाइट केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और वो जो एक्सपेरिमेंट है उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी चीज से फॉलो किया जाएगा। तो जिस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो रहा है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसी एक्सपेरिमेंट की कॉरोलरी भी ये भी चल रही है कि केवल वेव नहीं है और भी कुछ है। अब हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन डिटेल्स। तो आपकी 12वीं क्लास में आपने हालांकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बड़े चाव से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। एक है आपके पास इवैक्यूएटेड ट्यूब। इवैक्यूएटेड का मतलब ये वैक्यूम है। वैक्यूम क्यों? क्योंकि इतना हाई पोटेंशियल है कि एयर आयनाइज हो जाएगी, लेकिन हमें एयर को आयनाइज नहीं करना है। वी आर स्टडिंग समथिंग एल्स। तो एयर पूरी बाहर निकाल दी, ये वैक्यूम में है। और इस वैक्यूम के अंदर आपने यहां एक कैथोड रखा। कैथोड का मतलब होता है एक ऐसी मेटल जिसपे कि नेगेटिव चार्ज रख सकते हैं। तो एक मेटल सरफेस रखा है फिलहाल, ये मान लीजिए। इस जगह व्हाट वी हैव इज अ कलेक्टर या एनोड है, जिसपे कि चार्जेस आएंगे तो रिसीव हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आप देखें तो दिस इज आवर सर्किट, और हम मेजर करना चाहते हैं इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा। तो ये रहा एम्पियर, यानी हम मेजर करना चाहते हैं करंट कितना फ्लो होगा। ठीक है। कब मेजर करना चाहते हैं? जब बाहर से एक टॉर्च दिखाई जाए इस मेटल प्लेट पर। तो 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम जनरेट किया, क्यों जनरेट किया ये सवाल पूछने लायक है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा है, बहुत हाई है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया, उसके बाद में आपने यहां दिखाई टॉर्च। बीच में क्या है? वैक्यूम, खाली जगह। और इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्टर के थ्रू फ्लो करते हैं। तो इसका मतलब वैसे तो यहां इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना नहीं चाहिए था, यहाँ कोई करंट नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही टॉर्च ऑन की तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां दौड़ लगाने लगे। और जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इस एम्पियर या इस करंट मीटर में रीडिंग आने लगेगी करंट की कुछ। तो जब टॉर्च दिखाने पर जो करंट उत्पन्न हुआ उसे कहा गया फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अभी बहुत स्कीमेटिक से आपको बता दिया है ये डायग्राम। क्या क्या? हमारे पास एक मेटल रॉड है जिसको कि हमने नेगेटिवली चार्ज कर रखा है, और एक वैक्यूम के अंदर एक और पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, लेकिन करंट नहीं फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वैक्यूम है। करंट फ्लो होने के लिए एक पाथ मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही बाहर से एक टॉर्च ऑन की जाती है, अभी याद रखिएगा मैं टॉर्च बोल रहा हूँ, इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है। ये टॉर्च ऑन की जाती है, यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और यहाँ करंट मिलने लगता है। इसका मतलब दिस वैक्यूम स्टार्ट्स टू बिहेव एज अ कंडक्टिंग मीडियम। ये क्यों हो रहा है? यही इफेक्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और हाइपोथेसिस क्या माना जा रहा है कि ये जो लाइट आप इस पर डाल रहे हैं ना, इस लाइट की वजह से फोटोन, ये इलेक्ट्रॉन निकल निकल कर भाग रहे हैं। लाइट में क्या है? फोटॉन्स, पार्टिकल्स ऑफ वेव एनर्जी। वो टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बाहर निकल, और ये बाहर निकलते हुए इलेक्ट्रॉन तेजी से इस एनोड की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। ये हो रहा है। ठीक है। तो अब बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते वक्त हम वेरिएबल्स रखते हैं, कुछ कंट्रोल करेंगे, कुछ वेरी करके देखेंगे। वो है, सबसे पहला है हमारा मेजरमेंट। क्या है? हम मेजर किसे कर रहे हैं? करंट को। तो जो हम मेजर कर रहे हैं वो क्वांटिटी है करंट। और वेरी क्या क्या कर सकते हैं? 3-4 चीजें वेरी करेंगे हम। एक है ये एनोड और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल ये हम वेरी करेंगे। मैं इसके आगे
ये वाला साइन लगा देता हूँ, इसका मतलब वेरी करेंगे, और अगर स्ट्रेट साइन है मतलब ये हम मेजर करेंगे, तो पोटेंशियल वेरी करके देख सकते हैं। और क्या वेरी कर सकते हैं? ये जो मटेरियल रखा है किस मेटल का है, गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है, तो मटेरियल वेरी करके भी देखेंगे। फिर ये टॉर्च है, अलग अलग तरीके की हो सकती है, ये रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, व्हाइट लाइट हो सकती है, ब्लू हो सकती है, अल्ट्रावायलेट हो सकती है, इंफ्रारेड हो सकती है। तो जब मैं ये चीजें बोल रहा हूँ अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, व्हाइट लाइट, तो इसका मतलब हुआ हम ये भी वेरी करके देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। और इस टॉर्च की अपने आप में एक और प्रॉपर्टी भी होती है जिसे बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से आप समझ सकते हैं कि कितने वॉट की बैटरी इस टॉर्च के अंदर डाली गई है। अगर कम वॉट की डाली है तो कम रोशनी आएगी, ज्यादा वॉट की डाली है तो ज्यादा रोशनी आएगी। जब ज्यादा रोशनी आ रही है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, कम रोशनी आ रही है तो इंटेंसिटी कम है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं जो हम वेरी करके देख सकते हैं। और मेजर क्या करना है? केवल करंट। तो अलग अलग तरीके से हम अपनाएंगे। पहले क्या करेंगे? पोटेंशियल को सेम रखेंगे, मटेरियल को भी सेम रखेंगे, और केवल फ्रीक्वेंसी बदल के देखेंगे। पोटेंशियल को सेम रखेंगे, मटेरियल को सेम रखेंगे, केवल फ्रीक्वेंसी बदल के देखेंगे, या फ्रीक्वेंसी के भी सेम रखेंगे, केवल इंटेंसिटी बदल के देखेंगे। तो अलग अलग कंडीशंस लगाएंगे। फिर इंटेंसिटी सेम रखेंगे, पोटेंशियल सेम रखेंगे, मटेरियल सेम रखेंगे, फ्रीक्वेंसी बदलेंगे, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो एक छोटा सा एनिमेशन प्लेग्राउंड है हमारे पास। आई होप दिस मस्ट बी विजिबल ऑन योर स्क्रीन। इसमें जो आप देख रहे हैं वो है ये टॉर्च विच वी हैव विद अस। इस टॉर्च में आप यहाँ देखें ऊपर दिख रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो हम कंट्रोल कर सकते हैं इंटेंसिटी। नंबर ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इंटेंसिटी। इसको हम डायरेक्टली इंटेंसिटी में भी डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, बट आई प्रेफर कंट्रोलिंग इट इन नंबर ऑफ फोटॉन्स। यहाँ हमारे पास दूसरा कंट्रोल है, वी कैन ऑल्सो कंट्रोल इट्स वेवलेंथ। यानी हम रंग वगैरह बदल सकते हैं, लाल कलर की लाइट से लेके यूवी लाइट तक ले जा सकते हैं। यूवी दिखती नहीं है इसलिए यहाँ पे भी नहीं दिखेगी आपको। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं व्हाट इज द थिंग विच वी कैन चेंज द वोल्टेज अप्लाइड ऑल्सो। ये 0 से कहाँ तक जा रहे हैं? 8 तक और -8 तक। तो अभी फिलहाल मैं 0 पर ही रखता हूँ। और आपको शायद स्क्रीन पर दिख नहीं रहा हो, एक और भी वेरिएबल है मेरे पास जिससे हम मटेरियल चेंज कर सकते हैं। तो आप शायद ये महसूस कर पा रहे हो कि रंग कैसे बदल रहा है इस मेटल प्लेट का। तो अभी फिलहाल कैल्शियम लगा हुआ है, शुरुआत में सोडियम लगा था, तो दिस ग्रेइश कलर इज ऑफ सोडियम, ऐसे ही रिप्रेजेंट करने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सपेरिमेंट। और ये मान के चल रहे हैं कि ये जो बीच में है इस जगह, दिस इज इवैक्यूएटेड चेम्बर। इवैक्यूएटेड मतलब आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा लीजिए, करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ देखें बहुत सारे प्लस 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 दिख के रेड में, और ये माइनस 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 दिख के आपको ब्लू में। तो कितना भी वोल्टेज बढ़ा लीजिए, करंट नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो ये फिक्स हो गया कि ये जो है एक कंडक्टर नहीं है, इवैक्यूएटेड चेम्बर है। तो मैं दोबारा से इसको 0 पर ले जाता हूँ। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल इंक्रीज नंबर ऑफ फोटॉन्स। अभी कितना परसेंट चल रहा है? 0%। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाते हैं। तो फोटॉन्स ने स्ट्राइक करना शुरू किया। अब देख रहे हैं जैसे ही फोटोन ने स्ट्राइक करना शुरू किया, कुछ नीले नीले छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए। दोज आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बाहर सरफेस ऑफ द मेटल से जब फोटॉन्स उन पे स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी कितनी इंटेंसिटी आप देखें, केवल 11% इंटेंसिटी है। ओनली 11% इंटेंसिटी पर ये निकलना शुरू हो गए। और वोल्टेज मैंने क्या रखा हुआ है देखें, 0। अब इसकी इंटेंसिटी और बढ़ाते हैं। तो आप देखिए ज्यादा इंटेंसिटी करने पर ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और कुछ नहीं चेंज किया है मैंने, ना वोल्टेज चेंज किया है, ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज की है, ना ही मटेरियल चेंज किया है, केवल और केवल इंटेंसिटी बदली है। तो एक चीज लिख लीजिए, ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब ज्यादा करंट। यहाँ करंट देखिए कितना हो गया, 0.096। यूनिट भूल जाइए, अभी मिस हो गई। 0.096 करंट फ्लो हो रहा है ऑफ यूनिट्स ऑफ करंट। ठीक है, मिली एम्पियर मान लेते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स कम कर दिए मैंने, तो आप देखिए धीरे 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 करंट कम होता जा रहा है, और कम हो गया। और अब 0.021 से शुरू हो गया जब मैंने 17% इंटेंसिटी रखी। तो इस पे मत जाइए कितना परसेंट इंटेंसिटी है, ये केवल आपको समझाने के लिए है, कोई एग्जैक्ट नहीं है कि 17% इंटेंसिटी पर ही निकलता है। तो अभी हमने देखा क्या,
कि 441 नैनोमीटर वेवलेंथ है, यानी करीब करीब ब्लू कलर की लाइट है, तो 0.021 करंट आ रहा है 0 वोल्टेज देने पर। अब देखिए हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ओके, आई हैव केप्ट एवरीथिंग सेम, सब चीजें सेम रखी हैं, मैंने वोल्टेज बढ़ाया है, क्या करंट चेंज हो रहा है? नहीं। अब इसके नंबर ऑफ फोटॉन्स और बढ़ाते हैं, तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं। It depends on number of photons. The current depends on number of photons and not on this voltage you are applying from outside. तो फिर इसकी जरूरत क्या पड़ती है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, ठीक है? So let me just put it at 2 volts, let's say. And make me this as 100% intensity. You can see that the current is 0.123 now at 441 nanometers. अब इसकी frequency बदलते हैं, keeping everything same. Let us change the frequency. You see, I am actually increasing the wavelength. That means I am decreasing the frequency. और देखिए फ्रीक्वेंसी कम करने पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आना बंद हो गए, उतनी ही इंटेंसिटी है और उतना ही वोल्टेज अप्लाई किया है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आना बंद हो गए। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी कम से कम देनी पड़ेगी जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, तो हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। 604 पर नहीं आ रहे हैं, मैं यहाँ चेंज करता हूँ, लेट्स से मैंने किया 551। 551 मीन्स नियरली ब्लूइश येलोइश ग्रीन, तब भी नहीं आ रहे। और चेंज करते हैं, लेट मी जस्ट मेक इट 551 की जगह 500 करके देखते हैं, थोड़ा सा ब्लू हुआ। हाँ, 500 देने पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आने लगे हैं। तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है जिस पर ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होते हैं, एंड वी कॉल दैट एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी, ठीक है? जैसे लेट मी जस्ट इंक्रीज इट टू 560 52 मान रहे हैं, तो अभी देखिए 552 नैनोमीटर्स पे सोडियम है अगर यहाँ पर, तो सोडियम के लिए कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट हो रहा है। नाउ लेट मी चेंज इट टू जिंक। नाउ आई हैव कन्वर्टेड दिस टू जिंक, जिंक में भी नहीं रिलीज हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, कॉपर, इवन कॉपर के लिए भी नहीं। प्लैटिनम, प्लैटिनम के लिए भी नहीं। और कुछ है हमारे पास, कैल्शियम, कैल्शियम के लिए भी नहीं। तो 552 नैनोमीटर पे इन चारों मटेरियल पे तो कम से कम नहीं निकल रहा है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ी सी वेवलेंथ बढ़ाते हैं, कम करते हैं, इसका मतलब हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की है। नाउ यू सी, अगर हमारे पास सोडियम था तो सोडियम पर 486 नैनोमीटर पर ही ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रे, दैट इज सोडियम। 486 नैनोमीटर 1.2 वोल्ट्स, ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अगर मैं इसको कैल्शियम से रिप्लेस कर दूं तो देखिए उसी फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आना बंद हो गए, उसी वोल्टेज उसी फ्रीक्वेंसी पर। तो कैल्शियम का जाहिर सी बात है कि जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी सोडियम से। तो इसको और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ ले चलते हैं, यानी कम वेवलेंथ की तरफ। हाँ, तो 359 नैनोमीटर्स पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हुए हैं, तो इसका मतलब करीब करीब यूवी रीजन में चला गया इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आर यू गेटिंग इट? सो यू कैन प्ले विद दिस। ये एक ऑलरेडी अवेलेबल सिमुलेशन है, PHET, फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में इसे प्ले कर सकते हैं। यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। फाइन, नाउ व्हाट वील डू, एक लास्ट चीज बची है। इस वोल्टेज से हमें क्या पता चल रहा है, इस वोल्टेज का क्या औचित्य था? लेट अस ट्राई टू फाइंड समथिंग आउट। तो अभी यहाँ से आते हुए जो फोटॉन्स हैं वो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो लेट मी कन्वर्ट इट इनटू जस्ट इंटेंसिटी। आई डोंट वांट टू सी फोटॉन्स, आई जस्ट वांट टू सी इंटेंसिटी। तो ये मैंने इंटेंसिटी में बदल दिया है, अभी भी पार्टिकल्स ही रहे होंगे, तो केवल ये फोटॉन्स दिख रहे हैं। मैं किसी चीज पर गौर देना चाहता हूँ, एंड लेट मी फर्दर इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी करने पे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और करंट भी देखिए ज्यादा हो गया, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, ये वोल्टेज बढ़ा देता हूँ। यू सी,
वोल्टेज बढ़ाने पर तेजी से इलेक्ट्रॉन्स आने लगे, बस इतनी सी चीज है। मैंने वोल्टेज बढ़ाया है, तेजी से इलेक्ट्रॉन्स आगे आते जा रहे हैं। अब वोल्टेज धीरे धीरे कम करते हैं और देखते हैं कि क्या इनके आने की गति धीमी होती है। ओके, मैं धीरे धीरे कम किया, आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे आ रहे हैं। और एक वोल्टेज ऐसा होगा कि आने की बजाय ये लौटना शुरू कर देंगे, बाहर आएंगे लेकिन लौटना शुरू कर देंगे। और फोटो इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा क्योंकि दूसरे प्लेट तक तो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो टोटल जो आपसे कहा जाए कि फोटो इलेक्ट्रॉन वो जीरो हो गया। इसका मतलब एक वोल्टेज ऐसा जरूर होता है जो कि नेगेटिव साइड में आप ले जाएं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आना बंद हो जाते हैं। ओके, इससे या इस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं या कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं। और इससे हमें पता चल सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हमारी तरफ आ रहा है, उसको एक पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए कम से कम उतना ही पोटेंशियल देना होगा जिस पोटेंशियल से या जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हम काफी पहले ही इन इलेक्ट्रॉन्स को लौटा रहे हैं। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैंने 2.4 कर दिया। अब 2.4 में मैं देख पा रहा हूँ कि काफी हद तक आ रहे हैं। 0.076 फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, तो दैट विल नॉट वर्क। थोड़ा सा और कम किया जाए, 2.80 कर दिया। 2.80 पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रहा है, कैल्शियम है, इतनी वेवलेंथ है। ठीक है, तो एक ऐसा वोल्टेज जो नेगेटिव में जा रहा है हमें मिल गया, जिससे हम पता कर सकते हैं कि इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ओके, क्यों मैक्सिमम वाले ही सबसे तेजी से बाहर निकलते हैं, और जो सबसे तेजी से बाहर निकल रहे हैं उन्हीं को ही हमने रोक दिया। कुछ देखिए, कुछ यहाँ तक पहुंचने के बाद लौट रहे हैं, कुछ बीच में से ही लौट जाते हैं। तो जो मैक्सिमम वाले हम केवल उन पर गौर दे रहे हैं। एक ऑप्शन साइड में यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि मैं केवल मैक्सिमम वाले इलेक्ट्रॉन्स ही देखना चाहूँ तो अब जो आपको दिख रहा है वो केवल मैक्सिमम वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आप सभी कम से कम इस रेंज तक आएंगे तब लौट कर जाएंगे। और अब सभी इलेक्ट्रॉन्स देखना चाहते हैं तो ये रहे, कुछ बीच में से ही लौट जाएंगे, कुछ आगे जाकर लौटेंगे। तो बहुत सारी चीजें हो गई। एक कंट्रोल मिल गया हमें कि हम फ्रिक्वेंसी को बदल सकते हैं टॉर्च की, ये बदल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स उस टॉर्च से रिलीज हो रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड है, एनोड कैथोड, इनके बीच के पोटेंशियल से भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रिक करंट हम बदल सकते हैं। तो अब एक आखिरी चीज बचती है इस चीज की, पेन पेपर पे स्टडी करना। ठीक है, वो हमें करनी है। लेट अस स्विच ऑन टू पेन पेपर मोड नाउ। बहुत सारी चीजें सीखी हैं आज हमने। फाइन, तो इससे बेहतर तो वो डायग्राम में आपको शायद समझ आया होगा। अब जल्दी से व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक लॉट ऑफ डायग्राम्स या ग्राफ्स। तो हमारा जो मेजरेंट है, यानी जिसे हम मेजर कर रहे हैं, वो करंट है। और कई सारी चीजें हमने वेरी की है। मेजर हर जगह हम करंट कर रहे हैं, तो हर जगह यहाँ करंट ही रखिएगा। दिस इज करंट, लेट मी जस्ट कॉल दिस इज करंट। करंट कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज ऑल्सो करंट। यहाँ पे भी करंट है क्योंकि मेजर ही वही किया है हमने। और ये भी करंट है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को देख तो सकते नहीं थे, तो करंट ही मेजर कर पाएंगे। और जो वेरिएबल्स है वो बहुत सारे हैं। जैसे हमारे पास इंटेंसिटी एक वेरिएबल थी, फ्रीक्वेंसी एक वेरिएबल थी, फ्रीक्वेंसी के साथ वोल्टेज एक वेरिएबल था। फाइन, वोल्टेज एट डिफरेंट इंटेंसिटी, तो मैं लिख रहा हूं वोल्टेज ब्रैकेट में इंटेंसिटी वेरिएशन। और एक है वोल्टेज एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ये कई सारी चीजें हैं। इंटेंसिटी विद करंट कैसे बदलेगा, बाकी सब कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी विद करंट कैसे बदलेगा, बाकी सब कांस्टेंट। और दो और चीजें हैं, वोल्टेज चेंज कर रहे हैं और साथ में इंटेंसिटी भी बदल रही है तो कैसे चेंज आएगा, वोल्टेज बदल रहे हैं साथ में फ्रीक्वेंसी भी बदल रही है तो कैसे चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो पहले इस ग्राफ को देखते हैं। इट इज प्रीटी सिंपल। आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा जब जब आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। तो एक तो ये चीज तय हो गई। ठीक है,
इंटेंसिटी बढ़ाने पर आपका करंट बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन कौन सा मटेरियल हमने लिया था। तो आपने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दी, करंट नहीं निकला, करंट नहीं आया, करंट नहीं आया, फिर एक फ्रीक्वेंसी पर अगर आपने एक फ्रीक्वेंसी दी तो करंट आने लगेगा, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा। ये देखा था हमने, ब्लू से यूवी के रेंज में आ रहे थे तो करंट बढ़ता जा रहा था। लेकिन ये जो पॉइंट है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो कुछ मटेरियल का कट ऑफ ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे आता है, कुछ मटेरियल का कट ऑफ कम फ्रीक्वेंसी पे आता है। तो ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ए की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम है या कट ऑफ वेवलेंथ ज्यादा है, बी की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या कट ऑफ वेवलेंथ कम है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो दिस इज मटेरियल डिपेंडेंट। फाइन। फिर आते हैं तीसरी चीज पे कि अगर हम वोल्टेज बदल रहे हैं तो करंट कैसे बदलेगा अलग अलग इंटेंसिटीज पर, ठीक है। करंट कैसे बदलेगा अलग अलग इंटेंसिटीज पर। आपने एक चीज तो देखी होगी कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो 0 वोल्ट पे भी कुछ ना कुछ मिल ही रहा था करंट। तो वी वर गेटिंग अ 0 वोल्ट करंट ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, ओनली इंक्रीजिंग इंटेंसिटी 0 वोल्ट ही रखा था। तो एक बात तय है कि 0 वोल्ट दिया है एक्सटर्नली तब भी करंट था। अब जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा था, थोड़ा सा था, लेकिन था। वोल्टेज कम करने पे हमने देखा कि करंट कम हो गया और एक ऐसा पोटेंशियल आया या एक ऐसा टाइम आया जहां पे वो रिटार्डेशन पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल के बराबर हो गया और इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से लौटने लगे इंस्टेड ऑफ कमिंग ऑन टू द एनोड। और बढ़ाने पर वोल्टेज करंट बढ़ रहा था। तो एक तो ऐसा ग्राफ आएगा आपके पास। ये है मान लीजिए इंटेंसिटी 1 पे, इंटेंसिटी के साथ वेरिएशन भी देखना है इसी का। वहीं अगर आपकी इंटेंसिटी ज्यादा थी तो ज्यादा इंटेंसिटी 0 वोल्टेज पर भी ज्यादा करंट देगी। तो ये है 0 वोल्ट, ये है -V वोल्ट, इधर है +V। ज्यादा इंटेंसिटी 0 वोल्ट पे भी ज्यादा करंट देगी, लेकिन एक ऐसा वोल्टेज जरूर एग्जिस्ट करता है जो कि बराबर होगा। ये V0 जिसे मैं बोल रहा हूं, दिस विल बी सेम फॉर ऑल इंटेंसिटीज। और फिर आप आगे बढ़ाएंगे तो फोटो करंट बढ़ जाएगा। तो ये V0 एक थ्रेशोल्ड की तरह काम कर रहा है। अगर आपने उससे कम कर दिया अपना वोल्टेज नेगेटिव साइड में तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट रीच द एनोड एंड द करंट विल नॉट बी कंप्लीट, यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी फोटो करंट। तो इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू 0 है, यहाँ इस लाइन पे। ऊपर तो करंट पॉजिटिव है, नीचे करंट नेगेटिव है, नेगेटिव मिल नहीं रहा है। तो हमने देखा इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के साथ बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ इट डिपेंड्स ऑन की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। इंटेंसिटी में ऑल्दो इट इंक्रीजेस डायरेक्टली, लेकिन देखा कि 0 वोल्ट पे भी ऐसे बढ़ सकता है। और वोल्टेज नेगेटिव साइड में ले जाएंगे तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे भले ही कोई भी इंटेंसिटी हो, आपका करंट 0 हो जाएगा। फाइन। अब वोल्टेज बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं तो क्या होगा इसका देखें कि सबसे पहले तो हमने एक चीज देखी कि 0 वोल्ट पे भी कोई ना कोई करंट होता ही है, ओके। और वोल्टेज बढ़ाने पर कुछ हद तक करंट बढ़ता है लेकिन फिर सैचुरेट हो जाता है। तो वोल्टेज पे ज्यादा तेज नहीं बढ़ सकता। आपने सोचा कि बहुत ज्यादा वोल्टेज कर दूं बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा, नहीं, सैचुरेट हो जाता है एक वोल्टेज पे। और अगर वोल्टेज कम करेंगे तो करंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इवेंचुअली वही जो रिटार्डेशन पोटेंशियल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पास आने के बजाय दूर फेंक दिए जाते हैं, उस वजह से ये करंट कम हो जाएगा और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग होगा। आपने देखा कि जो रिटार्डेशन पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगा। जो रिटार्डेशन पोटेंशियल है ईवी, वो केवल फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगा। आपने जितनी फ्रीक्वेंसी दी उसी हिसाब से आपको माइनस ईवी देना पड़ेगा या वोल्टेज देना पड़ेगा उस फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए या इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो एक रिटार्डेशन पोटेंशियल यहाँ से ऐसे आएगा, एक V2 के लिए ऐसे निकालेंगे आप, और एक V3 के लिए ऐसे। और ये क्या है, ये हमारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। ये हमारी कम फ्रीक्वेंसी थी, रेड वाली सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी V3, और ग्रीन वाली उससे कम फ्रीक्वेंसी थी V2। तो V1 V2 V3 ऐसे हैं। V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3। सॉरी, न्यू बोलना चाहिए, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, V से कंफ्यूज ना हो। तो रिटार्डेशन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन व्हाट, रिटार्डेशन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन ऑब्वियसली मटेरियल, क्योंकि मटेरियल पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, बट आल्सो ऑन फ्रीक्वेंसी। रिटार्डेशन पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। थ्रेशोल्ड frequency depends on only material and nothing else.
इंटेंसिटी से कैसे रिलेशन है फोटो करंट का? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये 4 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट के या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, मैंने किताब में से छांट ली थी आपको बताने के लिए, वो आप नोट करते जाइएगा कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो मतलब ग्राफ की ही रिलेटेड बातें हैं, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉन की नंबर्स बढ़ता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है। अगर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम है तो वोल्टेज बढ़ाने पर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक ही फोटो करंट बढ़ेगा, फिर नहीं बढ़ेगा। तो यहां देखिए, अगर मैं केवल एक फ्रीक्वेंसी की बात करता तो एक फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर थ्रेशोल्ड वैल्यू तक जा सकता था करंट, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और अगर आपने नेगेटिव वोल्टेज लगाया है तो फोटो करंट एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पर जीरो हो जाता है, जिसे हम रिटार्डेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और उस रिटार्डेशन पोटेंशियल से हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, जो कि बाद का विषय है, हम अगली वीडियो में इसको देखेंगे। हर एक सब्सटेंस के लिए, हर एक दिए गए मटेरियल के लिए, जैसे सोडियम है, जिंक है, प्लेटिनम है, कैल्शियम है, ये जो फ्रीक्वेंसी है जिस पर की फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक होती है उस मटेरियल की, उस मटेरियल का सिग्नेचर है। आप मान लीजिए आयरन है, आयरन के लिए फ्रीक्वेंसी न्यू 1 पे कुछ एमिट हो रहा है, वी कॉल दैट एज वर्क फंक्शन। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और जो लास्ट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन नहीं देखेंगे कि ये फोटोन जाते हैं अंदर, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर बातचीत होती है फोटोन और इलेक्ट्रॉन की, फिर एब्जॉर्ब होने के बाद फोटोन कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलो। नथिंग लाइक दैट, बहुत इंस्टेंटेनियस है। जैसे ही टॉर्च ऑन की वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा, कोई टाइम लैग नहीं है, तो नो टाइम लैग। जो कि बाकी सारी क्लासिकल फिजिक्स डिफाई करती है। वो क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि मोमेंटम इंटरेक्शन का तो समय देते, इतना समय तो देते कि आपस में एनर्जी इंटरफेस बातचीत हो सकती, वो फोटॉन्स अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते उन इलेक्ट्रॉन्स को ताकि वो बाहर आ जाए। बट देयर इज समथिंग अमिस, कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। तो ये 3-4 चीजें हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं, आप इसे याद करिए। और साथ ही ये जो प्लेग्राउंड है, इसे आप खेलकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वास्तव में चीज क्या है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून्ड।